وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. جزاک اللہ ڈاکٹر ناصر لک صاحب. اب میں نیشنل اینتھم ہم پیش کریں گے اور اس کے لیے سب کو گزارش ہے کہ جب شروع ہو جائے تو 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے. نیشنل اینتھم. In the heart of Sindh lies Sakhar, a city that for many years struggled with limited access to quality health care. Recognizing the plight of patients from the province, the Sindh Institute of Urology and Transplantation, SIUT, took the initiative to bridge this gap. SIUT identified an abandoned hospital, refurbished it into a new facility, and named it after Dr. Leela Chadlani, a gynecologist and the founder of the old hospital. Here, SIUT, with the generous support of Sindh government, established the Chadlani Medical Center, a center aimed to address the medical needs of the vast population across remote parts of Sindh, as well as adjoining areas of Balochistan and Punjab. In 2022, SIUT Chadlani Medical Center embraced innovation and established a center of excellence in robotic surgery. In addition to Chadlani Medical Center, SIUT has a daycare dialysis center in Larkan. As SIUT continues to redefine healthcare in the region, a new milestone awaits on the horizon. The SIUT medical complex at Sakhar Bypass has been established to address the medical needs of the large population residing in remote areas of Sindh, southern Punjab, and nearby areas of Balochistan, where there is a significant prevalence of renal disorders. The completion of the first phase of the SIUT medical complex in Sakhar marks the establishment of the state-of-the-art facility comprising 171 beds,
fully furnished and equipped. The complex is well prepared to provide specialized medical services in urology, nephrology, and oncology. The complex houses a dialysis department equipped with 6 units housing approximately 70 dialysis machines. With a focus on comprehensive diagnosis, the radiology department possesses modern facilities such as CT scan, X-ray, and ultrasound. The lab facilities encompass hematology, biochemistry, and a blood bank to support efficient medical services. To ensure seamless medical care, the complex is equipped with operation theaters offering specialized services in angio access and daycare surgery for urology and nephrology patients. Additionally, plans are underway to install PET-CT and cyclotron facilities to cater to the needs of cancer patients. We cannot let them die just because they cannot afford to live. These words by Dr. Adib Rizvi encapsulate the philosophy of SIUT, where treatment is provided free, with dignity and compassion, without any discrimination on the basis of color, caste, or creed. With an unwavering commitment to the people it serves, SIUT Sakhar shines as a beacon of hope, lighting the way towards a healthier and more equitable future for all. मैं ये बताता चलूँ कि ये जो छबरानी मेडिकल सेंटर था उसका इफ्तिताह सैयद कायम अली शाह ने किया था, और जब पेशेंट का नंबर बढ़ गया तो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की मदद से उनके कहने पे ये यहाँ पर नया कॉम्प्लेक्स हुआ, और 2022 में हमने तकरीबन 2,10,000 पेशेंट देखे। तो वहाँ क्योंकि लोड बढ़ गया था और 60,000 डायलिसिस की हैं और 40,000 सर्जरी की। वहाँ यूरोलॉजी की जितनी बीमारियाँ हैं सबका इलाज फ्री होता है, और सिंध गवर्नमेंट का उसमें 100% जो है वो सपोर्ट देना। तो अब मैं अपने प्रोफेसर रिजी साहब को दावत दूँगा। सर के तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। कराची में तकरीबन 10 चलती हैं हॉस्पिटल्स। अब सक्कर में 2 हॉस्पिटल SIUT की हैं, डालकाना में एक चल रही है और एक शिकारपुर में। तो सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। बेहद मशकूर हूँ मैं आप लोगों का इस धूप में और ऐसे सख्त मौसम में भी आप लोग तशरीफ़ लाए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप बैठे हुए हैं वो एक ऐसी चीज़ है दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। आपने कीपिंग अप विद द ट्रेडिशन ऑफ सिंध एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, दैट इज़ हर शख्स को जिंदा रहने का हक है, और दैट टू हैज़ टू बी फ्री विद डिग्निटी, एंड दैट वाज स्टार्टेड, and now nearly 50 years have completed, and the philosophy is practicing. Philosophy is being practiced, and this is going on. Anybody, irrespective of caste, color, creed, religious belief, money or no money, money is never asked, can enter in SIUT and can demand the treatment, and he will be given. And this is something which not has been practiced for few days, few weeks, but it is being practiced for the last now 50 years. And nowhere in the world there is example. It was sometime initially in Britain when they were having the health services. Now even there they have to make charge. Here there is no question. We are a poor country. Everywhere we are sometimes even maligned that don't
Pakistanis in your business, they may betray you. But there is one thing, nowhere in the world, no community can claim that they care their people. They care their sick. We are the only country in the world who are providing free health care to our people. Great Britain, and it is because of the generosity of the people of the country and at the same time the good understanding of those who have been administering the country, the leaders. And we have come this far. To ask anybody that in Pakistan medical treatment is free and you can get your drug and everything. One transplant will cost about $50,000 minimum outside. Then maintenance treatment will be at least $10,000 worth immunosuppression every month. Here, we beg the people if they have not come to collect their medicine. So I think we are proud of Pakistan. We are proud of the people of Pakistan. We are even proud of our poverty, that in spite of poverty, we have not forgotten what is humanity. And with these words, I will just say one thing more, that whatever we have achieved has been through and through the generosity of the people of this country who have been donating and the understanding of the government and government servants of this country. And with these things, I will say that People's Party government has always been a great help to us. Frankly speaking, all the governments have been supporting us, but People's Party feel that our government and they should understand our problem. With these words, I will request our Honorable Chief Guest who is here to come and give a few words. He should be proud that there is poverty cannot be something which blocks the good deeds if you want to do. You can perform good deed even if you are poor, provided you have got a will. And with these words, I will pay my respect to you all. With kind words and your struggle, services of Professor Rizvi are not, known to everybody for the people of the Sindh. And we are very happy and pleased that he has come here and attended this session. So, हमारा ऑर्डर है वो उस लिहाज से है, मैं दावत दूंगा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की जो खिदमत हैं सक्कर के लिए वो सबके लिए नोन है और हमारी बहुत हेल्प करते रहते हैं। इनका फाउंडेशन स्टोन जो था 2013 में शाह साहब ने रखा था, तो मैं शाह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएंगे और अपने ख्याल के साथ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से अपने चेयरमैन, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को आज सक्खर में आने पे खुशामदीद भी कहता हूँ और दुआगो हूँ कि आपकी लीडरशिप में ये सिंध, ये पाकिस्तान तरक्की करे। मैं आज मोहतरम काबिल एहतराम डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप 500 किलोमीटर की जर्नी करके
آپ نے ہم سندھ والوں کی اور سکھر والوں کی جو خدمت کا ہم سب نے خواب دیکھا تھا، اس کی آج تعبیر کرنے آپ تشریف لے آئے۔ چیئرمین صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج آپ ہمیں سکھر میں 2 ڈیڈیکیٹڈ پروجیکٹ دے رہے ہیں، ایک دیا ہے، ایک پہ تشریف لائے۔ یقیناً یہ ہمارا خواب تھا کہ ہم سندھ کے اس شہر میں جو پاکستان کو جوڑتا ہے، ہم نے ان ہاسپٹل کا بنیاد رکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسپتال، ہاسپٹلس خالی ہونے چاہیے، اسپورٹس کے گراؤنڈ بھرے ہوئے نظر آنے چاہیے، مگر وقت کی ضرورت ہے، حالات ہیں۔ یقیناً حکومت سندھ کو تعریف کی جائے کہ آپ نے ہیلتھ کے میدان میں جو پاکستان میں خدمات دی ہیں، یہ پاکستان میں ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، اور یہ ہماری لیڈرشپ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ ان ہاسپٹل کے ساتھ چیئرمین صاحب، جہاں مریض آتے ہیں، کمزور لوگ آتے ہیں، بیمار لوگ آتے ہیں، ان کی شفا کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم کھیل کے میدانوں میں بھی پیچھے نہیں رہے، اور سندھ میں جو حکومت سندھ نے اور جو ہم نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے، اس کا بنیاد 1905 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے رکھا تھا، اور وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہونے کو ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ جب آپ سکھر آئیں گے تو اس کھیل کے میدان کا بھی افتتاح کریں گے، جو تقریباً 68 گیمز ہیں ایک ہی جگہ پہ، اور ایک یہ بھی میرا خواب ہے، یقیناً مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ ہم پاکستان میں اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام کریں، جو دنیا میں بہت شاید ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میری سوچ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، پاکستان اسپورٹس میں بہت پیچھے ہے، مگر ہم ایک یونیورسٹی بنا دیں اسپورٹس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کی، جو پاکستان کو ہمارے نوجوان روشناس کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایجوکیشن میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ایجوکیشن میں IBA جیسا انسٹیٹیوشن، وومن یونیورسٹی، آرٹس اینڈ ڈیزائن ہیریٹیج اروڑ یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی، مزید انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں میڈیکل یونیورسٹی بھی سکھر میں دیں گے۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت مشکور ہوں سکھر اور سندھ والوں کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے، ہماری ہمت افزائی کی، اور پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، جیسے ڈاکٹر ادیب صاحب نے کہا کہ دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ہے جہاں پہ فری ٹریٹمنٹ ہو۔ SIUT میں صرف فری ٹریٹمنٹ نہیں ہے، NICVD بھی فری ٹریٹمنٹ ہے، جس کی ایک آپریشن کم سے کم 15 سے 16 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ شاید تصور بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ نیشنل انسٹیٹیوشن آف چائلڈ کیئر، ہیلتھ کیئر، وہاں بھی فری ٹریٹمنٹ ہوگا۔
بہت بڑی بات ہے، سوچ کام نہیں کرتی، مگر یہ آپ کو سندھ میں ملے گا. اور آخر میں سندھ حکومت کا بہت ہی مشکور ہوں، آپ کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو ایم این ایز ہیں سکھر سے، ایم پی ایز ہیں خیرپور کے، ان کی طرف سے بھی سندھ حکومت کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں. اور اس جذبے کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتے بھی رہیں گے. سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کریں، ہم آپ کو مایوس نہ کیا ہے نہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. Thank you, Shah Saab, for your kind words and your services for the people of Sakhar and SIUT. So now I will call for Mr. Abdul Qadir Patel Saab, Federal Health Minister, to say a few words about it. Qadir Patel Saab especially came for signing the MOU and to participate in this function. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نوجوان قائد وزیر خارجہ پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور فرشتہ صرف انسان آج کے میزبان جناب ادیب رضوی صاحب، سی ایم سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب، سائیں خورشید شاہ، سائیں قائم علی شاہ، نثار کھوڑو صاحب، سائیں ناصر شاہ، اویس شاہ اور نعمان اینڈ صوبیہ، پنڈال میں موجود دیگر معززین خواتین و افراد، السلام علیکم. سر، میں اللہ کی مہربانی کے بعد جب سے میری قیادت آپ نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، عدی نے ریکمنڈ کیا اور ایک ذمہ داری مجھے ملی بحیثیت وفاقی وزیر صحت کے، تو حقیقت میں اس وقت مجھے دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ مجھے موقع ملا کمپیریزن، ایک تقابلی جائزے کا، کہ دوسرے صوبوں میں سہولیات صحت کی کیا ہیں اور سندھ کیا کچھ کر رہا ہے اور ہمارے پاس کیا موجود ہے. آپ یقین کریں سر، خدا کی قسم ہمارے کوئی 50% کے برابر بھی یہاں پر نہیں ہے بات. آپ کے ویژن کو سلام. عدی عزرا نے جس طرح اس کام کا بیڑا اٹھایا، سی ایم صاحب نے اور آپ کی ٹیم، ان سب کو سلام. اور آج ہی کے دن ہم نے دیکھا کہ آج اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کا سکھر میں افتتاح ہوا، چلڈرن آفیسز، چلڈرن جو ہاسپٹل ہے اس کا، اور پھر ایک چھوٹا موٹا ہمارے ذمہ جو تھا وہ کام کہ سندھ کی جو ایک امانت تھی جے پی ایم سی، این آئی سی ایچ اور این آئی سی وی ڈی، وہ بھی ہم نے وفاق کی جو جبرن ہاتھ میں تھی وہ سندھ کو ہم نے وہ لیز پر، لیکن وہ آج وہ بھی سندھ کے حوالے کر دی ہے. سر، there's a will, there's a way. کہنے کو بہت تھوڑا ٹائم تھا، 10 12 14 مہینے، اور جو کل ایک عمل کے ذریعے ختم بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ کی رہنمائی میں وہ سارے کام ہم نے جو ٹارگٹ کیے تھے الحمدللہ پورے کیے. اس کی تفصیل میں نہیں گنوانا چاہوں گا، جو کتابچے کی صورت میں جلد میسر ہوں گے، لیکن ایک دو چیزیں ضرور عرض کروں گا کہ 32 سال بعد پچھلے سال صوبوں نے، عدی عزرا موجود ہیں، صوبوں نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان لیا اور 2,04,000 بچوں نے ایک ہی وقت میں اپنے صوبے کے سلیبس کے مطابق امتحان دیا. نوٹ اے سنگل کمپلین. 2,04,000 بچے اس میں حصہ لے کر، ایک سنگل کمپلین. ایم ٹی آئی کا قانون ختم کیا، پی ایم ڈی سی بحال کی گئی، نرسنگ کونسل بحال کی گئی، یہ 14 مہینے میں. اور جو ورٹیکل پروگرام کی فنڈنگ تھی وہ 20 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہمارے. اور پولیو اوورسائٹ بورڈ جس کی آپ نے خود بھی میٹنگ کی تھی، انہوں نے رائٹنگ میں لکھا کہ یہ 14 ماہ گزشتہ 20 سال میں سب سے کامیاب ترین پاکستان میں صحت کے شعبے میں خدمات ہوئی ہیں. باقاعدہ انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا. یہ سر آپ کی لیڈرشپ ہے. ورنہ آپ دیکھتے تھے اسمبلی میں
ہم جب جاتے تھے تو سندھ کے لیے مختلف باتیں ہوتی تھی. اب میں جب کوئی میٹنگ چیئر کرتا ہوں تو میں مختلف لوگوں کو بولتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیا بولتے رہتے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ سندھ میں یہ صرف سانپ کاٹ رہا ہے, کتے کاٹ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ. میں نے کہا جب سے یہ حکومت تبدیل ہو گئی تو سانپ اور کتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابھی ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی؟ کیا انہوں نے بھی کاٹنا بند کر دیا؟ ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سانپ اور کتوں کو بھی پتہ چل گیا ہے. تو بہرحال سر یہ آپ کی رہنمائی ہے, آپ کا ویژن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے گزرنے کے بعد جو اللہ کو منظور ہوا, انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ وزیر اعظم ہوں گے تو پورا پاکستان سندھ کی طرح ترقی کرے, پورا پاکستان انشاءاللہ. بہت جلد ہمارے نوجوان قائد بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور یہ ساری سہولیات صرف سندھ تک محدود نہیں ہوں گی, پاکستان کے کونے کونے تک جائیں گی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. السلام علیکم. Thank you, Mr. Qadir Patel sahab. I must congratulate you on this successful MOU signed today, and thank you very much for your kind words. And now I invite Dr. Azra Fazal Bechu, the Health Minister Sindh. She is a Dow graduate, and there are many doctors from Karachi who are Dow graduates, and we are proud of her that she is leading the Health Department of Sindh, Dow graduate. And she has been supporter of SIUT, and last year she inaugurated the robotic system at SIUT Karachi, and now she is doing something for DIUT Nawab Shah. Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत खुशी हुई सखर आके, और मैं समझती हूँ ये सहरा जो है डॉक्टर दीप रिजवी, प्रोफेसर दीप रिजवी मेरे जो हैं टीचर, मेरे मेंटर, जो मेरे हमारे रिश्ते राह हैं, उनकी वजह से ये आज पॉसिबल हुआ कि ये SIUT इस्टेब्लिश हुआ है. इस काविशों में मैं चीफ मिनिस्टर साहब और खुर्शीद शाह साहब की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. खुर्शीद शाह was the vision behind this, and he convinced Professor Deep Rizvi कि SIUT को यहाँ लाया जाए सखर में, और CM साहब ने बहुत जेनरसली इसके लिए पैसे दिए. तो मैं समझती हूँ कि ये एक, और आई थिंक जो SIUT ने जो खुद काविशें की, collect donations and get the people of Sindh to donate money for this huge complex. It's really commendable. तो ये बातें हैं जो हमें जो तकवीत देती है, वो ये चीज़ है कि हमारे जो हैं प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में ऐसे लोग अभी हैं जो बेलौस खिदमत करते हैं लोगों की. प्रोफेसर दीप रिजवी का जो है नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है कि इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं फॉर रीनल डिजीज़, वो किधर भी मिसाल नहीं मिलती. आई थिंक वर्ल्ड वाइड किधर भी मिसाल नहीं मिलती. एंड अगर आप दूसरे मुल्कों में भी जाएँ तो प्रोफेसर दीप रिजवी को बहुत रिगार्ड से और बहुत एहतराम से उनका नाम लिया जाता है. मैं ईरान गई थी, वहाँ भी they were talking in great words for Professor Deep Rizvi. So मैं समझती हूँ कि ये नोबल प्रोफेशन है हमारा मेडिकल प्रोफेशन, इसमें जितनी खिदमत की जाए वो कम है. एंड जो आज SICH सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के ज़रिए हमने जो है एक अस्पताल जो है 300 बेडेड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है सखर में, आई थिंक वो भी सखर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है. और इसके साथ साथ SIUT तो है ही, शुरू से ही यहाँ जब SIUT इस्टेब्लिश हो गया था तो हॉस्पिटल पहले स्मॉल सेंटर था, उसमें फंक्शनल था, लेकिन अभी ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट मिला है. तो मैं समझती हूँ इससे बहुत जो है लोगों को जो है फ़ायदा होगा, और सिर्फ न सिर्फ सखर के लोगों को बल्कि जो गिरद और नवाह के लोग हैं उन्हें भी बड़ा फ़ायदा होगा. सो आप लोग सबका शुक्रिया. पीपल्स पार्टी जो है गवर्नमेंट हमेशा आपके लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है. जिए भुट्टो. Thank you, Dr. Azra, for your kind words. And now I invite Chief
Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah. Syed Murad Ali Shah is the friend of SIUT and a great supporter. And his performance during the COVID-19 was excellent, and especially during the flood relief his performance was excellent. And he is the most educated Chief Minister of his time in Pakistan. So I invite Syed Murad Ali Shah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Pakistan People's Party फाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब, मोहतरम कायम अली शाह साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, खुर्शीद शाह साहब, कादिर पटेल साहब, डॉक्टर अज़रा पेचो, यहाँ स्टेज पे बैठे और मेरे सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सक्खर, मेयर सक्खर और इलेक्टेड नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट के, उसके अलावा SIUT के डॉक्टर्स, यहाँ पे सक्खर से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों और जियालियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब शुक्रगुजार हैं आपके इस वक्त में जब आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, आपने वक्त निकाला और आपने ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह आऊँगा, और आज आप सक्खर आए हैं यहाँ पे SIUT सक्खर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने, उसके साथ साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्खर जिसका यहाँ इस इवेंट पे आने से पहले चेयरमैन साहब ने उसका भी इफ्तिताह किया है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मैं वफाकी वज़ीर सेहत जनाब कादिर पटेल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो और उनकी पूरी टीम आज यहाँ आई और उन्होंने चेयरमैन साहब के सामने 3 अस्पताल, लीज वीज नहीं है, वापस नहीं मिलेंगे, ये पहले ही मैंने वो ऐसे ही लेने थे तो ले लेते पहले, अब कभी भी नहीं मिलेंगे। खैर वो 3 अस्पताल जो हमारे थे राइटिंग में उन्होंने वापस सिंध के हवाले किए हैं ताकि वो सिंध के लोगों की खिदमत कर सके। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा इसलिए कि आप सब चेयरमैन साहब को यहाँ सुनने आए हैं। हेल्थ के हवाले से आपको खुर्शीद शाह साहब ने बताया, वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, आज खुर्शीद शाह साहब ने सिंध हुकूमत की तारीफ़ की है, मेरा ये खून और बढ़ गया इसलिए कि बड़ी मुश्किल से तारीफ़ करते हैं। शाह साहब आज पहली बार तारीफ़ की है उन्होंने सिंध हुकूमत की, वो इस वजह से है कि उनकी अपने लोगों के लिए और उनके लोगों की उम्मीदें खुर्शीद शाह साहब से इतनी ज़्यादा हैं कि वो फिर आगे हर एक को रखते अपने, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अपने टोस्ट पे रखते हैं। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक्नॉलेज किया है, हमने कोशिश की है। कायम अली शाह साहब ने ये 2008 से शुरुआत की थी, जब वहाँ से उन्होंने छोड़ा फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की गाइडेंस में और अपने सीनियर्स की गाइडेंस में मैंने कोशिश की है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमारी ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और पूरी कोशिश की है कि हम अपनी हुकूमत सिंध, अपने सिंध के लोगों की उम्मीदों पे पूरी उतरे। हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं हर जगह जाता हूँ, एक बात कहता हूँ, आज भी आपको बता रहा हूँ कि हम कुछ महीनों की, मैं तो 2 महीने की छुट्टी पे जाना चाह रहा था लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा नहीं 3 महीने, और वो बताता हूँ क्यों। चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, लोगों के पास वापस जाओ और हम सब आपके पास आएंगे, हम सारे इलेक्टेड नुमाइंदे, जो हमने किया है उसके बारे में भी पूछेंगे और जो हम नहीं कर सके हैं वो भी आवाम हमें बताएगी, आप हमें गाइड करेंगे। आगे जो करना है वो भी हम आवाम के पास जाके और उनसे गाइडेंस लेके हम वापस आएंगे और फिर अपनी लीडरशिप की मदद से, और इस दफ़े तो और ज़्यादा आसान होगा। पिछले 10 साल थोड़े से मुश्किल गुजरे हैं
वफाक में सब हुकूमतें सिवाय ये पिछले 1.5 साल में हम एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, 1 साल 4 महीने हुए या 5 महीने, नहीं तो 8.5 साल हम वफाक की एक ऐसी हुकूमत वफाक पे थी जो हर किस्म से, और ये अस्पतालों का जो 3 अस्पताल हैं, JPMC, NICH और NICVD, उसी का अंदाज़ा लगा लें। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग, अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वैसे भी उन नामों पे पाबंदियां भी लग गई हैं, तो वो चाबियाँ, वो आते थे जी इसकी चाबी दो अस्पताल की, हम इसको टेक ओवर करेंगे। हमने कहा बिस्मिल्लाह जी आओ टेक ओवर करो, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो तकरीबन उस वक्त तक 70-80 अरब रुपए खर्च किए थे, वो आपको पहले देने पड़ेंगे हमें। तो ठन गोपाल उनके पास था तो कुछ भी नहीं, तो वो एक बार तो ऐसा भी हुआ, कहते हो आपको पता हो कि नहीं, पिछली हुकूमत ने कहा कि चलाएगी वफाकी हुकूमत और पैसे सिंध हुकूमत देगी। वाह वाह, मतलब ये उल्टा सारा निज़ाम चला रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और ना सिर्फ हमने उन तीनों अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे सिंध में, यहाँ NICVD का आपको पता है, सक्खर का यहाँ से चंद कदम के फासले पे है। उसके अलावा थोड़ा सा दूर जाएंगे आप खैरपुर की तरफ, तो आपको पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट वहाँ मिलेगी, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त में होते हैं। फिर यहाँ सक्खर में चाइल्ड लाइफ के जो चिल्ड्रन इमरजेंसी सेंटर है, सक्खर में, लाड़कानों में, हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिंध में हमारी ऐसा सिस्टम है कि कोई भी बच्चा अस्पताल से आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ तो अस्पताल मिलता है, यहाँ हमारे पास फैसिलिटी है कि टेली मेडिसिन के थ्रू उसको सबसे अच्छे डॉक्टर पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के सबसे अच्छे डॉक्टर सिंध में हैं, और सबसे बड़े डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी बैठे हैं, उनकी वो देखते हैं उनको, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, लेकिन उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स टेली मेडिसिन के थ्रू वो देखते हैं। और हमने इस सिलसिले में अपनी जो शरह अमवात थी बच्चों की, पहले 1000 में से 86 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती थी, उसको हम आधे, और इंशाल्लाह फिर आप थोड़ा सा साउथ जाएंगे, NICVD है, फिर आप साउथ जाएंगे हैदराबाद के सैटेलाइट सेंटर्स, और हमारे पूरे सिंध में पे भी दिल के अमराज की वजह से थरपारकर जैसे हमारे NICVD का सैटेलाइट सेंटर है मिट्टी में। सिंध में कहीं पे भी दिल की अमराज की वजह से इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी मौत अल्लाह रब के हाथ में, लेकिन हुकूमत सिंध ने अपने डॉक्टर्स की मदद से ये फैसिलिटीज़ ऐसी कायम की हैं कि वो जल्द अस्पतालों तक आता है। तो रेस्क्यू 1112 की सर्विस है, फुली इक्विप्ड। कराची के अंदर मैंने आपको जिक्र किया, JPMC के अंदर इस वक्त दुनिया में बहुत कम सेंटर है, नंबर इस वक्त मुझे याद नहीं, जहां पे 2 साइबर हो जो इलाज करती है रेडिएशन के थ्रू। और हमारे पास JPMC में 2 तो हैं, एक पहले ऑर्डर हो गया, वो तीसरी साइबर नाइफ तदरीज, जो इस वक्त हमारे पास साइबर नाइफ का इलाज होता है एक पेशेंट का, ये जो नई साइबर नाइफ है वो 20 वही इलाज करती है। तो हम उधर 32
पेशेंट्स को दिन में ट्रीट कर सकेंगे 16 पहले, और जो पहली वाली साइबन एफ और स्लो थी उससे 8। आप उस ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स, SIUT के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और डॉक्टर अदीब आई एम श्योर मुझे करेंगे, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ और वो कभी मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जी मैंने आना है, तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, आप आने की भी तकलीफ़ ना करें, आप मुझे सिर्फ बता दें कि ज़रूरत क्या है SIUT की, और हम किसी भी तरीके से और किसी से पैसे छीन के किसी और के रोक के हम देंगे। इसलिए हमें पता है कि ये पैसे ऐसे मकसद के लिए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की सर्विस होगी और लोगों का अच्छा इलाज होगा। सेहत के जो हमारे और मराकज़ हैं, हम प्राइमरी हेल्थ में PPHI के ज़रिए पूरे सिंध में इलाज करा रहे हैं। हमें पता है कि वहाँ जहाँ जहाँ हमारे गैप्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश यही है कि हम अपने इन गैप्स को फिल करेंगे। और मैं जो बात कह रहा था उधर मैं ज़रा डाइग्रेस कर गया। मैंने कहा था कि पिछले 10 साल थोड़े मुश्किल थे, अगले 5 साल बल्कि अगले 30 साल हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होंगे, इसलिए कि अगली इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन के, वज़ीर आज़म बन के इस्लामाबाद में बैठेंगे। फिर हमारी जो थोड़ी बहुत तकालीफ है, जिए भुट्टो हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी अक्सरियत देंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इतनी डिविजन्स हैं कि हम इतनी सीट्स ले जाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। मैं एक बार फिर जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ हेल्थ के अलावा, इसलिए कि मौका कम मिलेगा। आप सब दोस्त इधर हैं, मेरे चेयरमैन भी मुझे सुन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम बताएं। हमने पिछले 5 सालों में, इन 5 सालों में हमारे ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। कोविड का आप सबको पता है, 2020 का सैलाब, 2022 का मेगा फ्लड, और सबसे बढ़ के एक ऐसी वफाकी हुकूमत जिसका एक सेलेक्टेड सरबराह कहता था कि जी सिंध तो हमारा है ही नहीं, यानी उसने सिंध को पाकिस्तान से ही अलग कर दिया था। इन सारी तकालीफ और इन सारी चीज़ों के बावजूद हम अपनी सिंध की आवाम के साथ खड़े रहे, चाहे वो कोविड हो, चाहे 2020 का लेफ्ट बैंक पे फ्लड हो, या 2022 का फ्लड जिसने पूरे सिंध को अपनी लपेट पे लिया था। और उस वक्त चेयरमैन साहब आपने जो हिम्मत दिलाई थी, इसलिए कि आप वफाकी वज़ीर ख़ारजा थे और आपने अपने सारे दौरे मनसूख किए और आप खुद सिंध में आए। आपने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पे दावत दी, वो आए और उन्होंने देखा कि जिस किस्म की तबाही हुई है। और उसके बाद ये जब तबाही अभी जारी थी, हम पानी इवैक्यूएट कर रहे थे, हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, उनकी गाइडेंस में हमने कहा कि जी हम कैसे अब इसको, जो हमें नुकसान हुआ है, इसको पूरा कैसे करेंगे। हमने वर्ल्ड बैंक से बात करनी शुरू की, आलमी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की। और ये मैं आपको बता के खुशी हो रही है कि हमने जो भी रास्ते, रोड्स थे दबा हुए हैं, जो हमारी अस्पतालें थी, जो स्कूल थे, वफाक के साथ भी हमने, वफाक से भी पैसे लिए, सिंध हुकूमत ने पैसे डाले, आलमी इदारों से पैसे लिए, और हमारी स्कीम्स तैयार है और ये रोल आउट हो चुकी है। और ये जो 3 महीने हम
2-3 महीने हम नहीं होंगे हुकूमत में, ये काम चलता रहेगा जो हमने करके गए। और ये रोड, और सबसे ज़्यादा बढ़ के मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आखिरी चीज़ बता दूं कि बड़े बड़े सैलाब आए हैं सिंध के अंदर। 1942 का सैलाब सब लोग बात करते हैं उसकी, उसके अलावा 76 का सैलाब तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा, जो बड़े उन्होंने देखा होगा। फिर 2010, 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 सबसे बड़ा सैलाब। कभी भी किसी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि जी हम लोगों को अपने घर बना के देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब लोगों के पास गए और देखा, सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी थी कि हमें घर बना के दो, तो उन्होंने हुकूमत सिंध को हुक्म दिया कि जी मैं कुछ नहीं जानता, आपने लोगों के घर बना के देने। और मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अपनी पूरी काबीना, अपने सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान, उन सब के साथ मिलके हमने ये घर बनाने की मुहिम शुरू की। और पूरे सिंध में 21 लाख घर जो या तो पार्शली या कम्प्लीटली डैमेज हुए थे उनको रीबिल्ड कर रहे हैं। और ना सिर्फ रीबिल्ड कर रहे हैं, चेयरमैन साहब की हिदायत पे जिनके मालिकाना हुकूक उनके पास नहीं है उन सब को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। और उसकी आपने देखा होगा कि वो मालिकाना हुकूक देने की सेरेमनी हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। इंशाअल्लाह ताला इस सैलाब में जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे लोगों का, लेकिन ये हुकूमत सिंध है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो अपने लोगों के साथ खड़ी रही है। और इस सैलाब में जो नुकसानात हुए हैं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बट उनके जो ज़ाती नुकसानात हुए हैं। अब मैं और बहुत बात कर सकता हूँ कि कैसे हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, कैसे गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई, कैसे इस साल जो कॉटन है जो 6-7 मिलियन बेल से ऊपर नहीं जाती थी, 13 मिलियन बेल इंशाल्लाह होगी, जिससे हम $3 अरब बचाएंगे इस मुल्क के। ये सारी चीज़ें तभी हुई जब हमें गाइडेंस थी अपनी लीडरशिप की और हमें सपोर्ट थी अपने लोगों की। अगर सिंध के लोगों की सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे नहीं होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध नहीं ऐसे परफॉर्म कर सकती। तो मैं आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आपने सपोर्ट दी है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जब हम आपके पास जाएंगे आप हमें शिकायत भी करेंगे, आप हमें इसलिए कि हम आप में से ही हैं, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन आपका वोट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इसलिए कि जैसे मैंने कहा जीए भुट्टो। तो मैं इसके साथ ही अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ जोश जज्बा काफ़ी है, तो मैं एक नारा लगवाता हूँ और मैं कहूँगा आप सब उसका जवाब दें ताकि ये मीडिया के थ्रू पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा तो उनको पता चले कि जी सक्खर की आवाज़ क्या है। नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी। Thank you, Shah Sahab. Thank you very much. So, Mr. Nisar Ali Khoro, Senator, is with us, and he has especially come for attending this today's ceremony. I will request him to say a few words. Mr. Nisar Ali. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, काबिल एहतराम डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, हमारे सीनियर रहनुमा जनाब कायम अली शाह साहब, स्टेज पे मौजूद सूबाई वज़रा, कौमी असम्बली के मेंबरान,
اور سامنے آج اس خوبصورت SIUT کے کمپلیکس میں بیٹھنے والے میرے دوستوں, MLA MPA صاحبان, معزز ساتھیوں, السلام علیکم. جیے بھٹو, جیے بے نظیر بھٹو. آج اس خوشی کے موقع پر بلاول صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ان کی گائیڈنس نے, سندھ حکومت نے ہمت پکڑی, آج ایک شاندار ہاسپٹل کا افتتاح بلاول صاحب کے اپنے ہاتھوں سے ہو رہا ہے, جس کے لیے میں سکھر کو مبارکباد دیتا ہوں, میں سندھ کو مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ سکھر ایسی جگہ ہے جہاں دوسرے صوبوں کے لوگوں کا بھی گزر ہوتا ہے. بلوچستان بھی یہاں سے گزرتا ہے, تو پنجاب بھی, تو کوئی اور بھی, تو سندھ بھی. تیسرا بڑا شہر سندھ کا, اور اسی کے شان کے مطابق یہ اتنی اچھی ہاسپٹل, یہ ہاسپٹل جو زندگی بچاتی ہے. بلاول صاحب کی لیڈرشپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے صحت کے محکمے میں اس نے دل بچانے کی کوشش کی, اس نے کڈنیز بچانے کی کوشش کی, اس نے لیور بچانے کی کوشش کی, اور دنیا کو دکھا دیا کہ کم فنڈنگ کے باوجود یہاں یہ سارا علاج مفت میں ہو سکتا ہے, جو نہ صرف سندھ کے لوگوں کو پتا اور ان کی دستیابی ہے, لیکن سارے پاکستان تو کجا, افغانستان سے بھی لوگوں نے آ کے یہاں مفت علاج کروایا ہے. یہ ان کی خوبصورت کی سوچ ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی زندگی میں ہماری مشینری خراب ہو جاتی ہے, دل بھی خراب ہو جاتا ہے, دل یعنی دھڑکنا کم کر دیتا ہے, کبھی گڑبڑ کر دیتا ہے, لیکن اس کو بچایا تو سمجھو اللہ کی دی ہوئی زندگی کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ انسان کی وہ واقعتاً بنیادی خدمت کرے جس سے اس کی زندگی بہتر چل سکے. میں بلاول صاحب کو اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان. مکان کا مطلب ہے چھت. چھت وہ جو اس کی کہے, بول سکے کہ یہ میری چھت ہے, اور بولتا تب ہے جب اس کو وہ مالکانہ حق ہو. کچی آبادیوں میں مالکانہ حق ہے تو گاؤں کے لوگوں کو مالکانہ حق کیوں نہ ملے؟ جو صرف گھر بناتے ہیں لیکن مالکانہ حقوق نہیں ہوتے ان کو, اس مالکانہ حق سے آگے زندگی بڑھتی ہے. ہم تو بھی گھر بنا کے دے رہے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل مدد سے دے رہے ہیں, بلاول صاحب کی کوششوں کی وجہ سے دے رہے ہیں. وزیر خارجہ کی حیثیت میں جو دنیا کو اس نے فرانس میں اکٹھا کیا, UN میں اکٹھا کیا, کہیں بھی اکٹھا کیا, یہ ان کی مدد سے بن تو رہے. لیکن میری تو دعا ہوگی کہ وہ بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا روٹی, کپڑا اور مکان, جس مکان میں گھر میں کوئی غریب چھت کچی گھر میں رہتا ہے اس کا بھی اس کو پلاٹ کی سند مل جائے تو یہاں سب زندگی بہتر گزار سکیں گے. آپ سب دوستوں کو اب یہ 1.5 سال میں پتہ چل چکا ہے کہ عوام دوست حکومت کیا ہو سکتی ہے اور وہ تعصبی کیا کر سکتے ہیں. جو کبھی کہتے تھے کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں, پھر کہتے تھے NFC ایوارڈ کے بعد تو وفاق جو ہے وہ کنگلا ہو گیا ہے, اب پیسے ہم اکٹھا کر کے دیں. یہ تیرے گھر کے کچن بنانے کے اور چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے, تم نے انہی صوبوں پر خرچ کرنے چاہیے. اور میں خوشی مبارکباد دیتا ہوں 2008 کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو, جب انہوں نے صوبوں کو زیادہ حصہ دیا NFC ایوارڈ میں اور مرکز کو کم دیا, کیونکہ یہ صوبے اگر مضبوط ہوں گے تو مرکز بھی مضبوط ہوگا, اور اس بنیاد پر پاکستان نے آگے بڑھ کے ترقی کرنی ہے. بلاول صاحب کی کوششوں کا اعتراف دشمن بھی کرتا ہے, مخالف بھی کرتا ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے دوست بنائے, ہر جگہ گیا, دوست بنا کر پاکستان کو بیچ میں بیٹھنے کا موقع ملا. ایسا ہی موقع جب 2008 میں پتہ نہیں امریکہ میں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں آصف علی خان زرداری صاحب بھی بیچ میں بیٹھے تھے, تو
बारक ओबामा साहब इधर बैठे थे तो कोई बरतानिया का वज़ीर आज़म इधर बैठा था। पाकिस्तान को अपनी कदर करानी चाहिए अवाम दोस्ती की बुनियाद पर, और ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराना चाहती है और करवा सकती है, क्योंकि मेरे पास बेनज़ीर भुट्टो का नाम है, मेरे पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम है, जिसने पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ किया। तो अल्लाह करेगा तुम्हारी मदद से, इन सब बहन भाइयों की मदद से ये आएगी इलेक्शन, कहीं भागेगी नहीं, वापस उस जमहूरियत की पटड़ी पे लाना है पाकिस्तान को। तो कह रहे इलेक्शन में कहीं जाना नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से सिंध की खिदमत करते हुए बिलावल साहब ने नमूना पेश कर दिया है, इसको अप्रिशिएट करते हुए सारे पाकिस्तान में बिलावल साहब को रिस्पांस मिले कि कल हम कह सकें, अरे भाई इस कुर्सी पे जिस पे बिलावल साहब बैठा है, अब कुर्सी भी सजने लगी है। तो मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरे दो अल्फाज सुने, आप सबको दुआएं देता हूं। अल्लाह आपकी बच्चों की, अपने घर वालों की सेहत कायम रखे, लंबी जिंदगी दे, खुशियां हासिल करो और जिए भुट्टो के नारे लगाते रहो। बहुत शुक्रिया। Thank you, Nisar Ahmed Bhutto Sahab, for your kind words and very elaborate speech. And we are lucky that Syed Qaim Ali Shah, ex-Chief Minister, is with us. He inaugurated the SIUT Sakhar in 2009. I still remember as a Chief Minister here when helping SIUT, many times he visited us, and his services for Sindh, people of Sindh, is beyond any doubt. He is a national asset, so Syed Qaim Ali Shah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हर दिल अजीज चेयरमैन और फॉरेन मिनिस्टर जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, डॉक्टर पुराने हमारे मेहरबान डॉक्टर अदीब रज़वी साहब, मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर, निसार कोड़ो साहब माशाल्लाह ज़ोरदार तकरीर की, और बहुत से दोस्त बैठे हैं, वज़रा भी बैठे हैं। कोई विसरी हो तो गलो न ख़राब कराम और चवन तो नाराज़ थी वजन। मुझे अज़ीज़ दोस्तों, ये बड़ी अहम और अजीम तकरीब है। ये डॉक्टर साहब का बहुत ही विजन है और इस विजन को तक़वियत दी है हमारे चेयरमैन ने, हौसला अफजाई की है, आइडियाज़ दिए हैं। इसलिए पूरे सिंध में लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, रेत बस रही है। तो रेत का मसला तो मैं इस तरह से अर्ज़ करता हूँ कि रेत से अब सोना कोयला निकल रहा है, जिसके लिए भुट्टो साहब के ज़माने में कहते थे कि क्यों गए हैं आप इंडिया, वहाँ तो घास भी नहीं निकलता, अब वो सोना कोयला निकलता है। ये विजन था भुट्टो साहब का, और उसी विजन को चलाते हुए हमारे चेयरमैन साहब उसी विजन पे चल रहे हैं। ये बार बार कहा गया रोटी कपड़ा और मकान, मकान के सिलसिले में भी, रोज़गार के सिलसिले में। मैं कहता हूँ लोग शायद भूले नहीं होंगे कि बीबी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने प्लेसमेंट ब्यूरो बनाया, एक अहम इदारा बनाया कि जो रोज़गार है पाकिस्तान में उनके लिए रोज़गार मुहैया किया जाएगा, और उन पर केस भी हुआ। जज साहब ने कहा, पूछा कि जी तोहमत है आप पर कि आपने रोज़गार दिया है, आपने नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने दी हैं, अगर मौका मिला तो इससे कहीं ज़्यादा नौकरियां दूंगी और खिदमत करूंगी लोगों की। ये जज्बा हमारी लीडरशिप में है। कहाँ है और कौन सी लीडरशिप है यहाँ? कौन से लीडर ऐसे कहते हैं? अवामी लीडर कौन है जो दुनिया में आए? बीबी जब आई 30 लाख से
ज़्यादा लोगों ने इस्तकबाल किया और सचन ग्लेशियर से भी लोग आए और यही उनके नवासे एक एक जगह पे जाते हैं। दीर से हो आए और बहुत मैं समझता हूँ पाकिस्तान का इलाका कोई नहीं छोड़ा। तो पाकिस्तान के इलाके तो खैर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो अभी आई इससे पहले वो हमरा हाणे त अलाए छा कंदो हूंदो। वो हमरा अलाए छा कंदो हूंदो, कहिड़ा ख़्वाब ॾिसंदो हूंदो, पर माण्हुनि खे नाराज़ करे छॾियो हुई। चाइना पंहिंजे लेखे नाराज़ी, होॾो अमेरिका पंहिंजे लेखे नाराज़ी। इहा क़यादत असांजे बिलावल साहब जी जो ॿई धुरियूं, न त हुन जो मुंहुं काॾे हो, अमेरिका जो मुंहुं काॾे हो, ऐं वरी चाइना जो मुंहुं काॾे हो। वॾो प्रोजेक्ट हो हिते सीपैक जो, उहो रुकियो पियो हो। इहो छा असांजो बिलावल साहब आहे जंहिं वञी चाइना खे परचायो बि, सीपैक बि चई त हलंदी ऐं उहा इंशाल्लाह कामयाब थींदी। बसि कई साईं, मां त चवां पियो मां न ॻाल्हायां ऐं गलो बि ख़राबु हो, पर हुकुम थियो त ॻाल्हायां, गलो ठीकु थी वियो। जीए भुट्टो। Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Shah Sahab. In the end, I invite Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab, who is very near and dear to our hearts, and also near and dear to the Professor Rizvi's heart because of Mohtara's son. His services as a foreign minister were commendable, and his services during the flood relief campaign also commendable for Pakistan. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, मैं सीएम साहब को कहता हूं कि आपका केस को देख लें। मैं अभी आपके सामने जो है, अभी आपका कहने से मुझे पता चला, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं आपके सामने जो है चीफ मिनिस्टर साहब को हिदायत देता हूं कि इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए। मैं आज यहाँ सखर आया हूँ 3 काम करने के लिए। एक, हमारा जो NICVD और NICH में जो 18वीं तरमीम पे डाका डाल के साकिब निसार और इमरान नियाजी ने मिलके आपका NICVD और आपका NICH और आपका GPMC पे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उसका आज हमारा ऑफिशियली MOU साइनिंग हो चुका है और वापस हमने उनसे ये सारे इदारे ले लिए हैं। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार है कि उनका एत्तेहादी बनते हुए हमारा चनी मुतालबा थे, यही एक मुतालबा था कि हमारा जो अपने हॉस्पिटल्स है वो हमें वापस दिया जाए। तो आज आपका वफाकी वज़ीर सेहत ने भी और सूबाई वज़ीर सेहत ने उसका MOU साइनिंग कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला अब कोई रुकावट नहीं होगा, चाहे वह NICH हो, NICVD हो, जहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं हम उधर भी पहुंचाएंगे। फिर जो यहाँ सखर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने के लिए हम अभी उधर से होकर आए हैं और इतना शानदार चिल्ड्रन हॉस्पिटल मैंने देखा है माशाल्लाह। और यहाँ
تیسرا چیز اس کے ساتھ ساتھ جو SIUT میڈیکل کمپلیکس ہے سکھر کا، اس کا افتتاح کرنا، اور وہ بھی ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ افتتاح کرنا، یہ میرے لیے ایک ایسا خوشی کا موقع ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ہمارا یہ کوشش تھا کہ آپ کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے ارد گرد کے عوام کے لیے ہم ان پروجیکٹس کو انوگریٹ کر سکیں تاکہ آپ کو بھی سہولت ملے اور ان کو بھی سہولت ملے. اس پریزنٹیشن میں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کو ایک کوٹ لکھا گیا تھا انگریزی میں کہ we cannot let them die just because they cannot afford to live. اور یہ جو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا فلسفہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شہد کے شعبے میں ہمارا نظریہ ہے، ہمارا منشور ہے. اور میں نے مسلسل یہ کوشش کیا ہے اور انشاءاللہ اسی بنیاد پہ آگے جا کے الیکشن بھی لڑوں کہ ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہے وہ NICVT کا دل کا علاج ہو، SIUT کا کڈنی کا علاج ہو، گمبٹ میں آپ کا لیور سے لے کے لنگز تک، ہر کسی علاج جو آپ کو چاہیے وہاں ڈاکٹر بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے، وہ بھی مفت. سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں، کراچی سے لے کے کشمور تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایسے صحت کے ادارے کھڑے کریں جس سے نہ صرف سندھ کے عوام کو عالمی سٹینڈرڈز کا صحت کا سہولت ملے مگر وہ سہولت مفت ہو. اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے عام آدمی کا، غریب آدمی کا خدمت کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کیس رکھا، یہی فلسفہ پورا پاکستان کا فلسفہ ہونا چاہیے، سارے صوبہ کا فلسفہ ہونا چاہیے، ہمارا وفاقی حکومت کا فلسفہ ہونا چاہیے. ہمارا صحت کا، پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کا حکومت کا صحت کے ادارے ہیں، ان کا یہ فلسفہ ہونا چاہیے جو یہاں سندھ میں ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ you cannot let them die just because they cannot afford to live. اگر سندھ میں، یہ پورے پاکستان میں، سندھ کیا ایک پاکستان میں اگر ایک سینٹ لائک فگر ہے تو وہ ہمارا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہے، جس نے اپنا پورا زندگی اس ملک کے غریب کو صحت کے سہولت پہنچائے ہیں. اور اگر حکومت مدد بھی نہیں کرتا تو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے اپنا کام کرنا ہے. مگر میں حکومت سندھ کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ اس لیے کہ حکومت سندھ نے SIUT کے ساتھ اور ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ پارٹنر کر کے نہ صرف کراچی کے عوام کو، آپ کو سکھر میں یہ میڈیکل کمپلیکس دلوایا، ہمیں لڑکانہ میں آپ کا ڈیالسس سینٹر موجود ہے، دوسرے ڈسٹرکٹس میں ہمارا خواب یہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم SIUT کا یا میڈیکل فیسلٹی، میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل کھولنا چاہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ خواب پورا پاکستان کے لیے رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا جو مشن ہے اس کو ہم پورا پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں. جو دوسرا ہاسپٹل میں نے آج یہاں سکھر میں انوگریٹ کیا وہ بچوں کا چلڈرن ہاسپٹل ہے. اس میں ہم
साउथ कोरिया का हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि साउथ कोरिया ने हुकूमत सिंध को हमने साउथ कोरिया से कर्ज लिया है, सॉफ्ट लोन लिया है, ताकि हम आपके लिए, नौजवानों के लिए ये बड़ा सा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहाँ जो भी इलाज बच्चों को, नौजवानों को ज़रूरत पड़ेगा, उनको इस हॉस्पिटल में मिल सकें। चाहे वो नॉर्मल जो बीमारियां हैं जिनका मुकाबला करना पड़ता है उनका इलाज हो, या वो डेंटिस्ट्री का इलाज हो, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हर किस्म का इलाज, इमरजेंसी केयर से लेके उनका ट्रीटमेंट का, उसका पोस्ट जो होता है, आपको उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, दवाइयाँ देना पड़ता है, कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता है, वो पूरा सिलसिला उन बच्चों के लिए मुफ्त होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस पूरा इलाके के लिए, चाहे वो ना सिर्फ सूबा सिंध मगर बलूचिस्तान के बच्चे, जनूबी पंजाब के बच्चे इंशाअल्लाह ताला आपके सखर में आकर इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपना मुफ्त इलाज करवाएंगे। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको समझाया कि जो बच्चों का शराय अमवात है उसका मुकाबला करने के लिए हमने काफ़ी ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हम बच्चों के शराय अमवात में और नियोनेटल मोर्टेलिटी में कमी लेकर आ सकें। इसमें जो यहाँ आज हॉस्पिटल का हमने इफ्तिताह किया, इंशाअल्लाह ताला उस मकसद में हमें ये मदद करेगा कि इतना शानदार जो फैसिलिटी है वो यहाँ के अवाम के लिए मौजूद होगा। ये कराची का NICH के बाद सखर का यह SICH बन चुका है, और इसके लिए भी हमारा एक विजन है, एक सोच है कि हम चाह रहे हैं कि सिंध के जो बड़ा शहर हैं उनमें हम बड़े जो ऐसे हॉस्पिटल्स बनाएंगे बच्चों के लिए, जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होंगे, और जो दूसरे अजला हैं उनमें हम पीडियाट्रिक सेंटर्स बनाएंगे। और वही मॉडल जो हमने NICVD के साथ किया था, उसी मॉडल को हम इंशाअल्लाह ताला NICH और SICH के साथ करवाएंगे, जहाँ कराची और सकर में आपके बड़े बड़े इदारे हैं, और दूसरा इस्लाम में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में इंशाअल्लाह ताला हम सैटेलाइट सेंटर्स के साथ, आउट सेंटर्स के साथ शुरू होते हुए, और टाइम अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका मिला तो फिर हम इनको भी अपग्रेड करेंगे और पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स इनको बनाएंगे। हमारा ये बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने चिल्ड्रन इमरजेंसी रूम्स, बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए चिल्ड्रन के इमरजेंसी रूम्स ऑलरेडी सिंध के हर अजला में खोले हैं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केयर के लिए थे। अब आपके पास एक पूरा ऐसा फैसिलिटी है जो कि कराची के बाद सबसे ज़्यादा उनके पास नियोनेटल ICUs भी हैं, सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं वो भी उनके पास है। मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा था, आपका यहाँ SIUT में भी जो मैं दौरा कर रहा था और उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी जो दौरा कर रहा था, आपके जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनसे मिलके कि हमारा जो सिंध के नौजवान हैं उन्होंने ना सिर्फ तालीम हासिल किया है, डॉक्टर्स बन रहे हैं, मगर इस किस्म के हॉस्पिटल में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने अवाम को सर्व कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला, इसी तरीके से
हम सब मिल के जो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का ख्वाब है उसको पूरा करेंगे। और जैसे आपने इस SIUT का एक इदारा खड़ा किया है, वैसे ही हम इस SICH को एक इदारा बना के उसका जाल बिछाएंगे पूरा सूबा में। NICVD का जाल तो हमने एक हद तक पहुँचा दिया है। 3 मीरपुर खास, कंबर शदात कोट को और सांगर को मैंने एक NICVD अभी तक देना है। बाकी मेरा ख्याल में मैंने सारे सूबा में हर डिस्ट्रिक्ट में या एक चेस्ट पेन यूनिट या एक पूरा इदारा बनाया उनके लिए। और वैसे ही मैं SIUT के साथ और SICH के साथ करवाना चाह रहा हूँ ताकि हम अपने अवाम को मुफ्त इलाज दिलवा सकें, सेहत के शोबे में अपना मंशूर पे अमल दरामद कर सकें। वो जो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का कोट था कि we cannot allow them to die because they cannot afford to live, उसको हम हकीकत में इंशाअल्लाह ताला तब्दील करेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ जिस अंदाज से और जिस तरीके से आपने ये चैलेंज कबूल किया और इतना कम अरसे में एक सेहत के शोबे में एक इनकलाब लेकर आए हैं इस सूबे में। आपने जो सारे स्टेरियोटाइप्स और सिंध के बारे में जो किरदार कशी होता था, जो तंकीद होता था, बिला वजह जो तंकीद होता था, उसको आपने इस किस्म के इदारे बना के खड़ा करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि आपको मालूम है कि मैं तो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, तो मुझे दूसरे ममालिक के साथ इंगेज करना पड़ता और मैं मिलता रहता हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। और जो पाकिस्तान को मदद करना चाहते हैं वो हमेशा हमसे पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो सैलाब के जो सिलसिला था, मगर वो एक ऐसा बात है कि जब मैं जाता हूँ किसी अफ्रीकन कंट्री में या ईरान में या इराक में, ख़ास तौर पे इराक में, दूसरे कंट्रीज़ में, कि मैं कह सकता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध से आप कोऑर्डिनेट करें। मैं आपको दिखाता हूँ हमने कराची में कैसे NICVD खड़ा कर दिया है, हमने कैसा SIUT खड़ा कर दिया है। अगर आपको मदद चाहिए, मैं आपको सिंध के हॉस्पिटल को जो मैनेज करते हैं आपके पास भेज सकता हूँ। आपको सिखा सकता हूँ कि जैसे हमने मुफ्त इलाज के ये इदारे खड़े किए हैं, आप भी ऐसे मुफ्त इलाज के इदारे खड़े कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें मौका देंगे तो हम इस निज़ाम को तो पूरा पाकिस्तान में फैलाएंगे ही फैलाएंगे। मगर आपके मदद के साथ एक दो वज़ीर ख़ारजा ऐसे जिनसे मैंने तो बात किया है, ऑब्वियसली इतना कम टाइम में मौका तो नहीं मिलता, लेकिन आपकी मदद के साथ एक दिन हम डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का विज़न, हमारा NICVD का विज़न, हमारा गंबट का विज़न दुनिया में फैलाएंगे और हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान का नर्सेस क्या काम कर सकते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आखिरी बात मेरे सियासी कारकुन को पैगाम देना चाहूँगा कि आप तो कभी इलेक्शन से नहीं डरे हैं और आप हमेशा, ख़ास तौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। तो 2-3 दिन बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से और हमारा स्केड्यूल से
اور بزی ہونے سے ہم فری ہوں گے تو میں آپ کا ہوں، آپ کے پاس ہوں گا. ہم سب مل کے محنت کریں گے، سب مل کے جدوجہد کریں گے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کریں گے.